Prepare for launch in 3, 2, 1. Ganga, the most worshipped, yet the most neglected river. To save this lifeline of India, let's light the fire in the hearts of all across the world. No more acts, only actions now. Namami Gange, Integrated Ganga Conservation Mission. A mission involving every Indian, right from the Prime Minister of India to the NRI living in America. An ardent and devoted follower of Ma Ganga has given a vision of wholesome rejuvenation of the river, Nirmal as well as Aviral Ganga. The sacred should be the purest. The self-purifying and special properties of Ganga Jal must be brought back. The primary focus of Namami Gange mission is a strong sewerage infrastructure, ensuring no untreated sewage or effluent is to be discharged into the river. Taking firm steps, industrial pollution will be abated. Low-cost sanitation facilities will be developed. Organic farming will be promoted. Riverfront development projects will be taken for major ghats. Afforestation will be taken up on a massive scale, and Gangetic flora and fauna will be conserved to maintain Ganga's ecological integrity. But none of these actions will work until we all dedicate ourselves to this mission. Bring in innovative managerial and technological know-how and connect the international community. All are welcomed to join hands in this noble mission. You too can donate funds, create awareness, plant trees, pilot new technologies, conduct research, adopt ghats. Through your contribution and participation, our ancient Ganga will find a modern identity. Let us not stop at merely quoting the Ved and Puran about the greatness of Ganga. We must aspire to bring such a future. When our kids search for Ganga, they can find a great, glorious river, replete with pride and beauty. And then we will proudly quote, "Your ancient home, your auspicious friendship, O heroes, your wealth is on the banks of the Ganga. Har Har Gange."
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
तो हमारे समक्ष अब हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं। प्राचार्य जी, आप विद्यालय के उच्च पद पे विद्वान हैं। स्कूल की ज़्यादातर जानकारी आपके पास आती है, क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली के बारे में बताने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास जो भी जानकारी आता है ये पूरा विद्यालय के बारे में, अच्छा बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ का स्टाफ का परफॉर्मेंस के बारे में बधाई देते हुए आता है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ का स्टूडेंट्स को अच्छा काम हो रहा है, प्रशंसा मिल रही है। प्राचार्य जी, जब आपके हमारे विद्यालय में नियुक्ति हुई तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैं बहुत खुश महसूस किया था। वो टाइम मैं केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी में काम कर रहा था। वहाँ का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद गच्चीबौली में जब मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला है, मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि ये मेरा होम टाउन भी है और यहाँ जो लोग जो मातृभाषा बोलते हैं वही मेरा मातृभाषा है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में। और यहाँ आने के बाद तो मेरा जो प्रशंसा मिली बच्चों से और जो बच्चों का यहाँ का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे और खुशी हुई। प्राचार्य जी, अगर आपको हमारे इस विद्यालय के बारे में एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या बताएंगे सर? केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली के बारे में एक ही वाक्य में बताना बहुत मुश्किल है। ये सर्वांगीण विकास जो विद्यार्थी जो छात्रा को होना है वो केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली में हो रहा है। विद्यालय का विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली हैदराबाद क्षेत्र में ही नहीं है, ये पूरा नेशनल वाइड में टॉप स्कूलों में ये माना जाता है। Regarding the Kendriya Vidyalaya Gachibowli, it's one of the best schools in India. Whatever the students are studying in our Vidyalaya, they are flourished. In this regard, I inform each and every student study well and bring the laurels to Kendriya Vidyalaya and get the good results, and years to come should be continued. हमारे विद्यालय की इंग्लिश PGP नीलम मेहरा मैम है। मैम, आप उत्तर भारत से दक्षिण में आई हैं। आपको यहाँ क्या क्या बदलाव नज़र आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के व्यवहार में? सबसे पहले तो यहाँ पे ठंड नहीं बढ़ती ज़्यादा, ये सबसे बड़ा बदलाव मुझे नज़र आया है। एकेडमिकली अगर कहूँ तो यहाँ के बच्चे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हैं उत्तर भारत की अपेक्षा, और एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। नॉर्थ में बच्चे एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि मैं पंजाब से आई हूँ। सो पंजाब में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पर है। मैम, आजकल स्कूलों में देखा जा रहा है कि केवल बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि केंद्रीय विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। इस विषय में एक शिक्षक के तौर पर आपके क्या विचार हैं? पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं वहाँ पर स्किल्स की ज़्यादा अहमियत है, और लाइफ स्किल्स मुझे लगता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से ही बच्चों में इनकलकेट की जा सकती है, जिसके लिए केंद्रीय विद्यालय सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। एकेडमिकली अगर हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना भी दें, अल्टीमेटली उन्हें जाकर सोसाइटी में ही रहना है। तो उसके लिए उनको व्यवहार कुशल होना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, और आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए जितनी दक्षताएं चाहिए वो शायद मुझे लगता है केंद्रीय विद्यालय देने में सक्षम है। मैम, अंत में हम आपसे हमारे विद्यालय के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, और पर्सनली आई फील दैट परफेक्शन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सो डेफिनेटली वी आर
moving towards that. So one day we will be. I have been associated with KVS for the past 7 years. I am PGT Economics, teaching in this KV for classes 11th and 12th Economics. And with this KV, I have been associated for the last 3 years, and it has been a wonderful experience for me. The ambience, the environment is very peaceful, calm, and serene environment. And the students are very cooperative, they are obedient, they are disciplined, and they have the urge to learn, and they have a curiosity mind, and very much interactive students of this Vidyalaya. The staff, and including principal and vice principal, are a dynamic staff. They are all hardworking, sincere teachers, and they are committed to their profession. And it has been wonderful coming here, and I will definitely cherish all these experiences. सर, आप कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा में हैं। हमें अपने कार्यकाल के अनुभव का ब्यौरा दीजिए। वैसे मेरा केंद्रीय विद्यालय में जो अनुभव है वो 27 वर्षों का है। उससे पहले भी मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र ही रहा, इसलिए 1968 से लेकर और 75 तक मैं विद्यार्थी था। उसके बाद बीच के जो 10 वर्ष हैं वो शिक्षा में, और 86 से आगे और आज तक मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ। इस बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था उसी समय से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एक केंद्रीय विद्यालय का ही अध्यापक बना, क्योंकि उस समय के समाज में जो शिक्षकों की स्थिति थी वह बहुत ही आदरणीय और सम्मानजनक थी। तो पिताजी, परिवार, गांव, घर, ये सब लोगों की इच्छा थी मैं एक अच्छा अध्यापक बनूं, और उसी के लिए मैंने तैयारी भी की, और उसके अतिरिक्त मैंने कुछ सोचा भी। सर, हमें पता चला है कि आप प्रथम श्रेणी के मध्य हुए खिलाड़ी थे। कृपया हमें ये बताइए कि आपने पढ़ाई और खेल का तालमेल कैसे बिठाया? इसके लिए आपका समय और मेरा समय, उसमें बहुत अंतर है। मेरे समय में मनोरंजन की सुविधाएं रेडियो छोड़कर कुछ नहीं थी, इसलिए घर का माहौल भी ऐसा था। पिताजी कहते थे पढ़ो और साथ साथ खेलो भी। माहौल मिल गया केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय में बड़े बच्चों को देखता खेलते हुए, तो मैं किनारे से बॉल उठाकर फेंका करता, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। फील्ड में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बड़े बच्चे पहले खेलते हैं। चौथी से पाँचवीं में गया, पाँचवीं से छठी में गया, धीरे धीरे हाउस टूर्नामेंट, क्लास टूर्नामेंट, और होते होते मैं स्कूल का प्लेयर बना। 8वीं जाकर मैं स्कूल टीम का सदस्य बन गया। हाँ, स्कूल टीम का सदस्य बना तो पहले फुटबॉल टीम का सदस्य बना, क्लस्टर, रीजनल खेलता रहा। फिर नेक्स्ट ईयर क्रिकेट की टीम बनी, फिर क्रिकेट टीम में मैं शामिल हो गया, उसमें फिर रीजनल खेला। अगले साल फिर वॉलीबॉल, फिर वॉलीबॉल टीम में, वॉलीबॉल टीम खेलते खेलते मैं उस बार नेशनल पहुंच गया वॉलीबॉल। लेकिन अभ्यास कैसे करता, तो सारे सामान मेरे घर पर होते थे। माताजी, पिताजी तो उतना सामान नहीं देते थे, लेकिन माताजी सारा सामान मुझे खरीद कर देती थी। और स्कूल के बाद थैला स्कूल के ही गेट पर रख करके और फील्ड में चले जाना, और शाम तक वहाँ पर खेलते रहना। और खेलते खेलते फिर थक गया, उसी सामान के साथ फिर थैला लटकाया, फिर घर पहुँच जाना। फिर आप सोचते होंगे पढ़ाई कैसे करते थे? पिताजी पूछा करते थे, ये खेल तो लिए, पढ़ाई कब करोगे? तो फिर खाया पिया और फिर सो गया।
सुबह 3 बजे वो पिताजी उठा दिया करते थे। 3 बजे? हाँ, सुबह 8-9 बजे तक सो जाना। हाँ, फिर 3 बजे पिताजी उठा देते, सामने में बैठे रहते। स्कूल में जो काम मिला है, होमवर्क, क्लास वर्क, एक बार ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए मैंने खेल को 50 और पढ़ाई को भी 50, दोनों को समान रूप से महत्व दिया है, किसी को ऊपर न किसी को नीचे। खेल कूद में थोड़ी बात अलग हो जाती है, क्योंकि रुचि उसमें विशेषकर मुझे क्रिकेट में थी। क्रिकेट में वॉलीबॉल में नेशनल चला गया, लेकिन मेरी इच्छा थी क्रिकेट में। हाउस के या स्कूल के बाहर जो भी मैच होता, मैं खास करके ले लिया जाता उसमें 7th क्लास से ही, क्योंकि मैं उसमें स्पिन नहीं करता था। मैं सीमर तेज बॉलर, और गांव का युवक, हाथ में शक्ति, बॉल कहीं भी पड़े सीधे मुंह पर पड़ना है एक बार। और इस प्रकार खूनी बॉलर के रूप में प्रसिद्ध था। खूनी बॉलर के रूप में। तो ये बात एक अजीब सी लगती है। हमारे खेल अध्यापक ने मेरे जीवन को बदल दिया। जब मैं इस एडमिशन के लिए तैयार हो गया, वहाँ एडमिशन मेरा लिस्ट निकल चुका था, एडमिशन के लिए जा रहा था, तो हमारे खेल अध्यापक ने, जब मैं उस स्कूल में गया फिर से खेल के अध्यापक से मिलने, तो देखा उनको 50-50 kg के 2 बैग लिए हुए जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, बैग रखा, प्रणाम सर। उन्होंने कहा क्या आजकल क्या हो रहा है? मैंने कहा सर खेल कूद के कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, मैं एक सलाह देता हूँ। क्या सर? देखो मैं भी खेल कूद का अध्यापक हूँ, पढ़ाई मेरी छूट गई, तुम ऐसा मत करना जो तुम मेरी अपनी पढ़ाई जारी रखो, खेल अपने साथ साथ चलता रहेगा। यदि खेल अपना लोगे तो पढ़ाई पूरी छूट जाएगी। इसलिए क्या करो, पढ़ाई पूरी कर लो और उसके बाद खेल को जीवन भर साथ साथ लेते चलना। तो खेल अध्यापक के चलते मुझे ये प्रेरणा मिली और आज मैं यहाँ पर एक हिंदी अध्यापक बना हूँ, क्योंकि वो भी हिंदी से पीछे थे। सर काफ़ी दिलचस्प था सर। आप हमारे विद्यालय में सीसी के प्रभारी हैं, हमें बताइए कि एक छात्र के जीवन में इन गतिविधियों का क्या महत्व है? आज जो देश के विभिन्न पदों पर आसीन अधिकांश बच्चों को देखेंगे तो उसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चे सबसे आगे रहते हैं। जिस समय मैं 1975 के बाद 77 में कॉलेज में गया, क्लास में भी हम लोगों का स्थान एक अलग था, क्योंकि बच्चे खड़े थे CBSE के स्टूडेंट। और आज भी जो बच्चे बाहर से जब आते हैं मिलने, तो सर हम लोगों के सामने वो बच्चे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है। इस विद्यालय में सभी जो हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे प्राचार्य हैं, इस विद्यालय का एक माहौल ऐसा है कि सब में सहयोग की भावना सबसे बड़ी है। कोई भी ऐसा काम हो, सब लोग बड़े मिलजुल कर तन मन धन से काम करते हैं, एक्स्ट्रा समय देते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही दम लेते हैं। ये हमारे स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता है। पढ़ाने का अनुभव काफ़ी अद्भुत होगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा से ही केवी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने सिर्फ 3 साल BA और 2 साल MA के लिए केवी से बाहर कॉलेज में गई हूँ। उसके अलावा मैं हमेशा केवी में रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ अद्भुत तो लगता नहीं है, मुझे मेरी फैमिली की तरह ही लगता है। और जहाँ तक केवी का सवाल है, वो पहले और आज मुझे लगता है कि कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। कल्चरली, इमोशनली वो सेम ही है, खाली टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस हो चुका है। बच्चों की राय में वे आपको काफ़ी प्रभावशाली अध्यापिका के रूप में देखते हैं। हर दिन इतने उत्साह के साथ आप कैसे प्रस्तुत हो पाती हैं? प्रभावशाली शब्द जो है वो एक फिलॉसफी है एक्चुअली। हर एक इंसान प्रभावशाली है अगर वो अपने लक्ष्य को
एक जगह केंद्रित कर दें, अगर वो सिंसियरिटी से काम करें, अगर वो जो चाहता है वो उसकी परख पहले से कर ले, तो वो अपने आप ही प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावशाली कोई अलग से कोशिश करके आती नहीं है। आखिरी सवाल था, अगर आज आप एक अध्यापिका ना होती तो क्या काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है? जब मैं आपकी तरह 9th, 10th, 11th की छात्रा थी, शायद डिफेंस फोर्स में लड़कियों का प्रवेश नहीं था। अगर होता शायद मैं आज एक आर्मी या नेवी ऑफिसर होती। कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर। एक डाउन, एक डाउन, एक डाउन, एक लेफ्ट राइट लेफ्ट। सामने सलामी लगा, सलामी जय जय सतेज। प्रार्थना स्थिति, प्रार्थना शुरू कर। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राण से भी प्यारा है। प्राण से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में खेला गया आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत 2-1 से सीरीज हारा। एलिस्टर कुक रहे मैन ऑफ द सीरीज। 28 साल बाद भारत इंग्लैंड से घरेलू सीरीज हारा। हॉकी इंडिया लीग में खिलाड़ियों की नीलामी। लंदन ओलंपिक के कप्तान छेत्री को जिसका शीर्षक है यह मेरी हमारी जिंदगानी।
तो लीजिए प्रस्तुत है। मई जून का महीना था, चेहरे पर पूरा पसीना था, छुट्टियों का यह समय था, आलस और क्रीड़ा में अजय था। सूरज उगता सिर्फ 10 बजे, रात आ जाती 8 ही बजे। वाह, और मैं क्या कहूँ, जैसे वे दिन तारों से सजे।
सर, क्या आपने हमेशा से एक अध्यापक बनने का ही सपना देखा था? Actually, I have taken this profession by choice. Basically, I am from the teaching family. That means in my 3-4 generations onwards, there we have teachers. And finally, the institute that I joined, that is Regional College of Education, made me complete teacher. And after that, I didn't think about any other profession rather than the teaching. So finally, I came out with the teaching profession, and I am here now. ओके सर। छात्रों की राय में आप काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवहार के इंसान माने जाते हैं और इस कारणवश बच्चे आपको बहुत चाहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? This is what I learned from my teachers, and I am implementing here. अभी हमारे समक्ष हमारे विद्यालय के खेलकूद के अध्यापक श्रीमान विजय भास्कर रेड्डी सर हैं। सर, आप उन लोगों की तरह नहीं हैं जो पानी की से भरे आधे गिलास को आधा खाली बताते हैं। आप उन विद्वानों में से हैं जो यह कहकर सराहना देते हैं कि कम से कम हमारे पास पानी से भरा आधा गिलास तो है। सर, केंद्रीय विद्यालय गच्चीबौली में आपने नेशनल प्लेयर्स के खिलाड़ियों की संख्या 3 से 93 बहुत छोटे अंतराल में हासिल की है। कृपया इस बात पर अपनी राय व्यक्त करें। I joined in this institution in 2008, and when I joined, 3 students have participated in the KVS Nationals, and from 3 last year we have achieved 98 national players, and out of 98, 81 players, national players have got medals. And this year in KVS Nationals, 45 students were selected, and out of that 31 got medals. So this is all determination, dedication and hard work of students, parents, teachers and coaches. This is a teamwork, and everywhere
from single step, we can make any, we can reach to any height, and we have proved that. And we, in this sense, our students have proved that. Only we are guiding the students, and our coaches are training the students, and hard work is from students' side, and from their support is from their parents' side. And if it is a teamwork, and all these elements combinedly work, anywhere in any country, we can get success. And that we have proved here. सर, हमें पता चला है कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया है। कृपया हमें इसके बारे में बताएं। This is KVS always supports the excellent teachers, hardworking teachers, and to encourage them. So this award was actually regional incentive. We have got three stages of awards in KVS. One is regional incentive, and the other is national incentive of KVS, and the third one is national incentive award will be given by the President of India. And these are all the awards given to encourage the teachers and to show the society the hard work put in by the good teachers and excellent teachers. सर, हम आपसे हमारे स्कूल के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। Yeah, Kendriya Vidyalaya Gachibowli is an excellent school, and any school is not just excellent with the pillars and structure. It is excellent with the basement of students, and here the students are really wonderful students, and with these wonderful students only we could make all this success. And without the raw material we cannot do anything, and here the students are very disciplined and highly determined and hard-working children, and because of their discipline, hard-working determination only, we could do all this success, and we have shown in the previous years, and even now we are showing, and this is all the greatness of our students and the high discipline and determination of them. मैं गीता सागर 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं हॉकी केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद संगठन हॉकी रीजन की कैप्टन हूँ। मैं 5 SGFI 18 बाहर के नेशनल्स खेल चुकी हूँ। स्कूल ने मुझे पीटी सर और राम बाबू सर ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि सर लोग सिखाने के तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वो देख के इंस्पायर होके 11th क्लास से सीख रही हूँ। अभी मेरा एम है मैं इंडिया कैंप एटलीस्ट इंडिया कैंप करूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बाद भी हॉकी और कंटिन्यू हो स्कूल में। अब तक हम कंटिन्यूसली 7 टाइम्स गोल्ड मेडल KVS में गोल्ड मेडल जीतते आ रहे हैं। ओनली गर्ल्स नहीं बॉयज़ में भी हम गोल्ड मेडल लेते आ रहे हैं। My name is Akshaya. I'm studying in class 12th A, and I'm studying in the school almost from a decade, and it was wonderful. And the school has given me a platform to mold my talent, and my source of inspiration is our PT sir, and he was really dedicated in molding his students, and I thank him from the bottom of my heart. And I've played 5 SDFIs and 6 KVS nationals, and I've been playing nationals from the outside also, and this school has given me so many opportunities, and this was the first time when I represented my school in regional level, and since then I started my career in athletics, and the name Sprint Queen from KVS. I am Sri Krishna, studying in class 10B in Kendriya Vidyalaya Gachibowli. I play badminton, and our school
has given me many opportunities to play, and I have represented my school many times in KV regionals, nationals, and also SGFI 2 times. And I am currently ranked 7th in All India Sub-Junior ranking. I am certified player by Badminton Association of India. I hope more and more players come out of this school. I love. I'll try my level best in Mumbai. I'll practice at my best. I'll try to take models from my seniors and do my best. So it will be a fabulous experience. I'll love it. सींचा।
ख्वाब था चरखे पे बुना, अपना वतन हिंदुस्तान है पुकारता, है पुकारता, सुन लो। नमस्कार, मैं हर्ष वर्मा 11वीं का छात्र आपके समक्ष अपने विचार इस विद्यालय के प्रति प्रकट करना चाहूँगा। मेरा विद्यालय। सुबह विद्यालय की चौखट पार करते ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। हर जगह शांति, एक समान माहौल और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच पढ़ने का ये सुनहरा अवसर सिर्फ मेरे को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही दिया। इससे पहले भी मैं कई विद्यालयों में पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस केंद्रीय विद्यालय जैसा संगठन मेरे को कहीं भी नहीं मिला। और सही बात बताया जाए तो ये केवी या कहा जाए मेरी दुनिया, मैं इस अपने विद्यालय को अपनी दुनिया कहूँगा, क्योंकि इस विद्यालय ने मेरे को उन 11 सालों में हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाई है जो मुझे एक सफल इंसान बनाने में बहुत बड़ी मेहनत, बहुत अहम रोल प्रकट करेगी। मेरे विद्यालय में हर एक छात्र एक दूसरे छात्र को भाईचारे की नज़र से देखता है। हमारे विद्यालय में भाईचारे के प्रति सब लोग समर्पित हैं, सब एक दूसरे को अपने काम के प्रति समर्पित रखते हैं और हमेशा हर एक इंसान की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जो इस भारत को एक प्रगतिशील देश बनाने में एक अहम किरदार निभाता है। मेरा नाम कोमल है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैंने साइंस ग्रुप लिया है। कई वर्ष हो गए मुझे इस विद्यालय में आए हुए, पर ऐसा लगता है कि मेरी इस विद्यालय से पुराना नाता है। मुझे ये विद्यालय बहुत भाने लगा है, क्योंकि इसमें मुझे मेरे विद्यालय एक इंद्रधनुष की तरह दिखता है, जिस प्रकार इंद्रधनुष इतना सुंदर है, उसी प्रकार मेरा विद्यालय भी बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के बच्चे, यहाँ की हरियाली मुझे बहुत भाती है। और जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, उसी प्रकार मेरे विद्यालय के भी 7 रंग हैं। जैसे मेरे विद्यालय का पहला रंग बैंगनी, जो इतना गहरा और इतना सुंदर है, वो है मेरे अध्यापक। मेरे विद्यालय का दूसरा रंग है जामुनी, मतलब इंडिगो।
वो अपने में कितना सुंदर लगता है। वह है ज्ञान का रंग, प्रकाश का रंग। यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं, होशियार हैं, होंगे क्यों नहीं। यहाँ के अध्यापक भी इतने होशियार तो हैं। और मेरे विद्यालय का तीसरा रंग है कला का रंग। मेरे विद्यालय का चौथा रंग है मेरे विद्यालय का संगीत और नृत्य का रंग। कहा जाता है जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, ऐसा कहा जाता है। सच में हमारे विद्यालय में इतनी खिलकारियाँ गूंजती हैं नाचने की, गाने की, बच्चे अपने में मग्न रहते हैं। और मेरे विद्यालय का पांचवा रंग बहुत सुंदर है, वह है खेल कूद का रंग। मेरे विद्यालय में खेल कूद को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यह बहुत सच्ची बात है। हमारे विद्यालय में संपूर्ण विकास होता है। और मेरे विद्यालय का छठा रंग है जश्न का रंग। इतना रंगीन है। हमारे विद्यालय में इतनी खुशी होती है कि हम जश्न से हमारी खुशी को व्यक्त करते हैं। जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, हम क्या नहीं सेलिब्रेट करते। हमारे विद्यालय में बहुत खुशी है। और सातवां और आखिरी रंग है और सबसे खूबसूरत रंग है जो कि है हम इस विद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण रंग हैं। हमारे बिना ये विद्यालय कैसा। मैं चेतन सिंह हूँ। मैं यहाँ इस विद्यालय में मैं 11वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ। इस विद्यालय ने मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं, जैसे कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ की प्रतियोगिता में अपना भाग लिया था और उसमें मैंने 400 और 800 दौड़ा था। इस विद्यालय ने शिक्षकों और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, तो मैं इस स्कूल का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ।